what do you mean by program and what do you mean by an instruction? So a program is nothing but a set of instructions. An instruction will actually tell you that what is the operation to be done and what is the data for that operation to be performed. Then we had seen the different units of von Neumann architecture. What are those units? We have input, output, ALU, control and memory unit. Then what is the function of input unit? It will accept the data, whatever the user has given input from using the input device. It will give that data to the CPU for processing. After the CPU has completed the processing, it will display the output by using any of the output devices. After that, if a user wants to store the data, it can store the data in the memory unit. Again, it can be any memory, primary or secondary memory. Then we had seen that when the input is taken, it is straight away given to the CPU. And CPU has multiple parts into it. But which part does the CPU gives the brain work? It gives it to the ALU. So your arithmetic and logic unit performs all the logical and arithmetic work: addition, subtraction, multiplication, division, logical and, or, not, shifting, rotating. All these operations are done by your ALU. Then we had come to this diagram that the memory part is nothing but your main memory and primary memory and secondary memory. If you want to execute any data, you have to bring that data from the memory and give it to the CPU for processing. After the CPU is processed, it will generate the output through the output device. And again, a user can save a same data or same output into this memory. Then we had seen that these devices are nothing but the input device from which we are giving the input, and the output device from which we are observing the outputs. Both of them are connected to the CPU by using the interfaces, which are called as IO interface. And who is doing the work of carrying the data from the device to CPU and from the CPU to device? It is done by the IO bus. So bus transfers all the data between devices and CPU. Then on this side, the communication between memory and CPU is done by using the system buses, that is address bus, data bus and control bus. Then we had seen the components of CPU. ALU, I just explained you. Then is a PC. PC stands for Program control. Program counter. program counter. Counter. So what is that doing? It is pointing which is the next instruction to be executed. IR stands for Instruction register. Instruction register. It is divided into two. Which are those two? Current instruction register and buffer instruction register. Instruction buffer register. Correct. We have two: current instruction register and instruction buffer register. Where are all the instructions stored? In current or in buffer? Stored in buffer, brought one by one in current. Correct. Everything is stored in buffer. One by one are selected and given in current. What is MAR? Memory Address register. Address register. Correct. So it is a place where all the addresses are stored, and then whichever address is required is put on the address bus and communicated to memory. What is MDR? Memory data register. Correct. Memory data register. Where is the data stored? It is stored in this register. Whichever data is required is put on the data bus and then given to memory, or then from memory given to CPU. Who is going to control all this ALU, PC, IR, MAR, MDR, accumulator and all? It will Control be unit. by the control unit. Where is the result going to get stored from ALU? It will be stored into accumulator. This is one type of your this is one type of your register. Along with this, we also have many register which keeps on changing from processor to processor, and we call them as GPR, general purpose registers. Clear this diagram? Yes, ma'am. Okay. Then we had seen that whenever any instruction is executed, it follows a cycle. What is that cycle? Fetch, decode, execute. Correct. It is fetch, decode and execute. First the instruction is fetched, instruction will be decoded, broken, which means, and then it will be executed. And when it comes to the last line, a result will also be generated. So what is from where the instruction will be fetched? Now let us see that. What steps are we supposed to follow?
instructions to be executed is brought from memory to CPU. If I want to execute any instruction, this is an instruction, correct? If I want to execute this instruction, where is this instruction right now? किधर रहेगा ये instruction? ये memory में, CPU में, क्या IO के पास? If I want to Ma'am, can you repeat? if I want an instruction to be executed, name of the instruction is add a plus b. Where is this instruction right now? Is it IR. 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 it is in the IR. Okay. Now, where is that program exactly? The program is in memory. Yes or no? Yes, ma'am. So program will be brought from the memory to the CPU. Yes or no? And then Yes. in the CPU it will be given to IR, and from IR it will be given to ALU. प्रोग्राम यूजर ने जो लिखा है वो किधर स्टोर होगा? पहले तो मेमोरी में. एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से सीपीयू में आएगा, उसका एंट्री आईआर में किया जाएगा, आईआर फिर एएलयू को देगा, फिर एएलयू रिजल्ट जनरेट करेगा और फिर आउटपुट यूजर को दिया जाएगा. इज दिस अ सीक्वेंस व्हिच विल बी फॉलोड? Yes, ma'am. Understanding, when I am a user, if I am writing a program, where will I store that program? In the memory. If I want to execute that program, anything whatever you want to execute has to be brought from the main memory to the CPU. Yes or no? Yes, ma'am. Now where is the place where the instructions are stored? IR. Where is the place where the instructions will be executed? ALU. So whenever I want to execute anything, any instruction, the instruction is in the memory, and from the memory it has to be transferred to the CPU. Okay, so what is happening? I am transferring it from PC to MAR. PC is what? Program counter. And what is MAR? Memory address register. मैंने क्यों मेमोरी एड्रेस रजिस्टर लिया है? बिकॉज जो डेटा है वो डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे एड्रेस लगेगा, करेक्ट? तो मेमोरी से डेटा आ गया है सीपीयू में. अभी सीपीयू से मुझे क्या करना है? एक एक इंस्ट्रक्शंस को उठाने हैं. तो अगर मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड ए प्लस बी, तो ये इंस्ट्रक्शन कौन से मेमोरी पे स्टोर्ड है वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. So what to check that instruction, I will first require address. So what I will do is I will make use of MAR. So the data will be transferred from program counter to MAR. Okay. Once I know the address, I will go to the required location. For example, location 0000. I will go to that location. I will generate a read signal. Whatever is written at the location 000 will be read. After it is read, वो जो भी डेटा है उधर a plus a is equal to 2 or b is equal to 3, that data will be brought via the data bus to MDR. Are you understanding? Yes, ma'am. देखो, I will come to the diagram. मेरे पास एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है? तो प्रोग्राम को भी ला दिया है सीपीयू में पूरा का पूरा. तो MAR will be coming into picture and MDR will be coming into picture. MAR से मैं क्या करूंगी? वो प्रोग्राम अगर 5 लाइन का है तो 5 इंस्ट्रक्शंस होंगे उसमें. वो 5 इंस्ट्रक्शन के एड्रेस लेना होगा मुझे. क्यों एड्रेस लेना होगा मुझे? क्योंकि इनडायरेक्टली डेटा लेना है. तो मैं डेटा डायरेक्ट तो नहीं ले सकती, मुझे एड्रेस चाहिए. तो MAR के थ्रू आई विल टेक द डेटा. जैसे ही थ्रू MAR आई विल टेक द एड्रेस. एज सुन एज आई गेट द एड्रेस, आई विल जनरेट अ रीड सिग्नल कि नाउ एड्रेस मिल गया है, जनरेट अ रीड सिग्नल टू रीड द डेटा. तो डेटा किधर है? MDR में है. तो डेटा रीड होगा. रीड कैसे होगा? डेटा बस पे लाया जाएगा. फिर डेटा बस पे लाने के बाद डेटा रीड हो जाएगा और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, ma'am. IR is only storing the instruction, but to perform the execution I will have to take help of MAR and MDR, because whenever I want to execute I have to first read. To read I have to go to the memory location. मेमोरी लोकेशन इज एड्रेस. एड्रेस के बाद डेटा लो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो. अंडरस्टैंडिंग? यस. Yes, So ma'am. program, so what is the function of program counter? Program counter will point to the address or to the instruction in MAR. MAR will go to the memory. Memory, that is the location of the memory, whether it is 0, 1, 2, 3, which location. Once the location is identified, it will make use of data bus to reach to the data register. यहाँ से डेटा उठाया जाएगा, डेटा रीड किया जाएगा, and the execution will be completed. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now ये तो हो गया fetch. Whatever we did now was just fetching of the data.
कहाँ से फेच हुआ? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से एड्रेस फेच हुआ, उसने हमको डेटा रजिस्टर तक पहुंचाया, डेटा रजिस्टर से डेटा फेच हो चुका है। अभी एग्जीक्यूशन हुआ है क्या डेटा का? नहीं। So from the instruction cycle we have completed the fetch cycle. Now we will see the execution cycle. तो अभी execution cycle के लिए just tell me from the diagram that during the fetch MAR went to the memory made use of MDR and we have got the data. Now what will happen when I want to execute? अभी मेरा डेटा CPU में आ गया है, तो अभी मैं यहाँ वहां किधर भी कुछ भी मांगने नहीं जाऊंगी, straight away I will give it to CPU for execution. So what will happen? CPU will activate its ALU. ALU will complete the execution and it will transfer the result back to the memory for the storage. And then what will happen? Before it is transferring it to the memory for the storage, it will give it to the accumulator for temporary storage. Once the result is displayed to the output, it will be permanently stored inside the memory. So this is how it will complete the execution. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मैंने क्या किया? फेच में MAR, एड्रेस बस, डेटा बस और MDR को यूज किया। ऐसे ये साइकिल करके मेरा डेटा जो है CPU में आ गया। अभी क्या करेगा? ALU एक्टिवेट होगा, कैलकुलेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, रिजल्ट जनरेट होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट यूजर को डिस्प्ले किया जाएगा, उसके बाद यूजर उसको सेव कर देगा मेमोरी में। समवन हैज रेज्ड हैंड। हु वाज इट? मैम बोलो मीत। हाँ बोलो मीत। मैम सब मेमोरी में सबसे पहले खाली एड्रेस ही जाएगा ना? हाँ, एड्रेस ही जाएगा, मतलब एड्रेस के साथ आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, जिधर भी जगह रहेगी उधर। सी मेमोरी इज लाइक योर ड्रॉवर। आपका जो कबर्ड में ड्रॉवर रहता है ना, ऐसा मेमोरी में ड्रॉवर है। शेल्फ 1, शेल्फ 2, शेल्फ 3, शेल्फ 4। अगर 1 और 3 फुल है फॉर एग्जाम्पल, और मेरा ऑपरेशन का रिजल्ट आया, यूजर के पास चला है, अभी यूजर को डेटा स्टोर करना है, तो जब वो डेटा मेमोरी पे पहुंचेगा तो उसको जो भी शेल्फ में जगह मिलेगी उधर वो स्टोर हो जाएगा, और फिर मेमोरी उसका जो भी एड्रेस है दैट विल बिकम अ न्यू एड्रेस ऑफ दैट डेटा। मैम लेकिन मैंने समझा एक कोड लिखा है, हाँ और अभी तक मैंने उसको रन नहीं किया, लेकिन वो कोड का जो एड्रेस होगा वो खाली मेमोरी में ही गया है अभी तक, हाँ सिर्फ एड्रेस। तो अगर रन किया तो सबसे पहले वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा, फिर जाएगा मेमोरी में, बराबर? सुनो, अभी मैंने एक प्रोग्राम लिखा है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है। ये प्रोग्राम मैंने स्टोर कर दिया 000 लोकेशन पे, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूंगी? अभी मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगी, तो वो 000 लोकेशन से जो भी डेटा है 2+2 जो भी डेटा है वो आ जाएगा सीपीयू में, ठीक है। सीपीयू क्या करेगा? 2+2 = 4 जनरेट करेगा। अभी 000 लोकेशन पे क्या डेटा था इनिशियली? 2 और 2। तो अभी मैंने उसको कहाँ लाया? 2 और 2 मेमोरी में से निकाल के मैंने उसको सीपीयू में लाया, बराबर? Yes. हाँ, तो अभी उधर जगह खाली हो गई, हाँ ठीक है। अभी सीपीयू में 2+2 4 जनरेट हुआ और 4 गया यूजर के पास, यूजर ने आउटपुट देख लिया। तब तक अगर यूजर ने दूसरा भी प्रोग्राम रन किया रहेगा तो 0000 के जगह पे नया डेटा आ गया, क्योंकि 2+2 जो पहले था वो सीपीयू में चला गया, अभी कुछ नया डेटा आ गया उधर, 3 और 4 आ गया। तो जब भी मुझे 2+2 4 का रिजल्ट स्टोर करना है, तभी 000 पे जगह तो है नहीं जो उसका पहले वाला एड्रेस था, तो जिधर जगह है, सपोज 0001 में जगह है, तो उधर जाके रिजल्ट 4 स्टोर करेगा। ओके। अभी आपका कबर्ड है, आपने व्हाइट टी शर्ट निकाला पहनने के लिए, तो जब भी व्हाइट टी शर्ट निकालोगे तभी जगह हो गई व्हाइट टी शर्ट की उधर, ठीक है। आपने व्हाइट टी शर्ट आज पूरा दिन पहना, आपकी मम्मी ने दूसरा ब्लैक टी शर्ट धो के तैयार रखा है, बाकी किधर भी जगह नहीं है, व्हाइट टी शर्ट के उधर ही जगह है, तो व्हाइट टी शर्ट हो गया रिप्लेस ब्लैक टी शर्ट से भी, और व्हाइट टी शर्ट आपने पहन के रखा है, तो जब भी कल वापस व्हाइट टी शर्ट धोने डालोगे तभी बाकी कबर्ड में जिधर भी जगह रहेगी उधर आपका व्हाइट टी शर्ट जाएगा। जिधर पहले था उधर ही जाना जरूरी नहीं है, आपका लोकेशन चेंज हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। इसलिए हर बार जब भी एग्जीक्यूशन होता है हर टाइम एड्रेस बस एड्रेस देगा ही, क्योंकि एड्रेस फिक्स नहीं है ना। व्हाइट टी शर्ट का एड्रेस फिक्स है क्या? नहीं। आज फर्स्ट ड्रॉवर में था, कल उसको धुलने के बाद लास्ट ड्रॉवर में भी जा सकता है वो, पर है तो कबर्ड में ही ना, ऐसा समझा? तो नेक्स्ट टाइम आप जब व्हाइट टी शर्ट लोगे तो आप फर्स्ट में नहीं ढूंढोगे, लास्ट में ढूंढना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में रखा गया था, ऐसा है। समझे? यस मैम। Yes, ma'am.
सो वेन एवर एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, क्या होता है, एग्जीक्यूशन को करने के लिए मैंने फेच किया डेटा मेमोरी से, मेरा डेटा आ गया बाय यूजिंग एमएआर और एमडीआर। सीपीयू क्या करेगा, एएलयू एक्टिवेट करेगा, एएलयू उसका काम करके रिजल्ट जनरेट करेगा एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर आउटपुट देगा आउटपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस डेटा आउटपुट जो है वो सेव कर देगा मेमोरी में वापस, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई वांट टू एग्जीक्यूट माय any command or any instruction, I am transferring the data from CPU to memory and from memory to CPU, or from CPU to IO and IO to CPU. ये कैसे हुआ समझा? Did you all understood this part and these arrows? Are you all there or I am disconnected? Yes ma'am, yes ma'am. Yes, ma'am, understood. देखो मैंने क्या किया, मेरा प्रोग्राम आ गया था इधर, ठीक है, अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। एएलयू ने एग्जीक्यूट किया, एक्यूमुलेटर ने स्टोर किया, सीपीयू से डेटा किधर गया, आईओ। क्यों गया, क्योंकि उसको डिस्प्ले करना था। आईओ से डेटा गया मेमोरी में, स्टोर हो गया, ठीक है। तो देयर इज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू एंड फ्रॉम सीपीयू टू आईओ ऑल्सो when I am executing, but when I am fetching, it is only between memory and CPU. Are you understanding the difference? Yes, ma'am. एग्जीक्यूशन के टाइम पे आईओ क्यों आया, क्योंकि मैंने आउटपुट दिखाया आईओ को, इसलिए मेमोरी भी आया, सीपीयू भी आया और आईओ भी आया। whereas when I fetched, when I'm fetching, see, when I'm fetching, I didn't used IO anywhere. जो भी थी मैं मेमोरी और सीपीयू के बीच में ही थी, बट जब मैंने एग्जीक्यूट किया तब मैंने आईओ को क्यों लाया पिक्चर में, बिकॉज आई वांटेड टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द आउटपुट डिवाइस। So whenever you fetch, only it is between memory and CPU, but when you execute, it is between memory, CPU and IO also. Clear? Yes, ma'am. Everybody? Should I move to the next topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we have next topic called as interconnection structure. Now, what do you mean by interconnection structure? Interconnection मतलब क्या? Connected with each other. हाँ, एक दूसरे को कनेक्ट करना है, उसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्शन। तो हमने ये सबको एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किया है, ये सबको एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किया है? Wires. What are those wires? नाम लिखा है ना वायर पे, क्या है वायर का नाम? Address bus Address bus. wire, bus wire, data. हाँ, मतलब बस, कैन आई से आई हैव कनेक्टेड ऑल थ्री ऑफ देम नॉट विद वायर्स बट विद बस? Yes, ma'am. Yes. So if I want to connect anything in the computer, I connect it with the wires and those wires are called as bus. ठीक है? So interconnection is nothing but where we will be learning about the buses. Okay, so interconnection structure is nothing but the bus structure. The path for connecting the component is called as interconnection structure. And what is that path? That path is nothing but a group of wires and those group of wires are called as buses. Why do we use this bus? To transfer data. To transfer the data from one place to another. तो हमने अभी देखा डेटा ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, आईओ से सीपीयू, सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू से आईओ, है ना, हो रहा है ना, ऐसे ही डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना इन तीनों के बीच में। Yes, ma'am. Okay, so we can transfer the data. That data can be bits, can be bytes, can be word also. ठीक है, एक दो बिट भी भेज सकते हो, बहुत सारा बाइट्स भी भेज सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स भी भेज सकते हो। Yes or no? Yes, ma'am. Is it necessary कि अगर आपका डेटा वर्ड है तो ही जाएगा, बिट्स एंड बाइट्स है तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? No, ma'am. So let it be anything, any type of data in form of bits, bytes or words, everything will be traveled with the help of that buses. ठीक है? Now data is traveled in parallel. Parallel मतलब क्या? What do you mean by parallel? No crossing paths. No crossing Same paths. line. Same मतलब? line. ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं सब लोग? लाइन बनाते हो क्या ट्रेन में? Side by side. कैसे भी चढ़ते ना, मैं आई तो मैं, Simultaneous.
हाँ साइमल्टेनियसली, मैं भी चढ़ूंगी, मीत भी चढ़ेगा, जय भी चढ़ेगा, जो आया वो चढ़ेगा, है ना। बट बस में कैसे चढ़ते हो? बस स्टॉप रहेगी तो बस में कैसे चढ़ते हो? पीछे के गेट से अंदर और आगे के गेट से बाहर। हाँ, एक के बाद अंदर जाते हो, बराबर। भले 2 गेट है तो भी एक करके जाते हो। तो अभी जो डेटा है हमारा कंप्यूटर के अंदर, वो भी कुछ ऐसे ही ट्रैवल करता है। वी कॉल इट एज सीरियल एंड पैरेलल। सीरियल मतलब क्या? एक के बाद एक के बाद एक के बाद डेटा जाएगा। पैरेलल मतलब बहुत सारा डेटा एक साथ जा सकता है, ठीक है। सो पैरेलल इज इक्वल टू ट्रेन एंड सीरियल इज इक्वल टू योर बस। ओके, सो जब ये हम पैरेलल बोलते हैं तभी क्या होगा? बहुत सारा डेटा कम टाइम में पहुंच जाता है। एंड सीरियल इज व्हाट? इट टेक्स मोर टाइम टू रीच लेस अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। अगर मैं 1 मिनट में, मेरे पास 1 ही मिनट है डेटा ट्रांसफर करने को, तो अगर मैं सीरियल यूज करूं और पैरेलल यूज करूं तो क्या डिफरेंस होगा? सीरियल में एक के बाद जाएगा तो मे भी हो सकता है 1 या 2 ही बिट जाए, बट पैरेलल मतलब क्या? मैं कितना भी डेटा भेज सकती हूँ। सो इफ योर टाइम इज 1 मिनट, विच इज फास्टर, पैरेलल और सीरियल? Parallel. Parallel. Why? Because much amount of data or more data is sent in parallel, whereas in serial only 1 by 1 data is sent. तो ये जो बस स्ट्रक्चर है अपने कंप्यूटर के अंदर, दिस बस स्ट्रक्चर इट यूजेस पैरेलल ट्रांसफर। एक साथ आप बहुत सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक जाएगा फिर ही दूसरा जाएगा फिर तीसरा जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा डेटा एक ही साथ आप भेज सकते हो, जितना उसका कैपेसिटी है, ठीक है। अगर बस 8 बिट का है तो आप 8 बिट ही भेज सकते हो। अगर बस 8 बिट का है और आप 16 बिट भेजोगे और बोलोगे मैडम ने तो बोला था कितना भी जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। जितना कैपेसिटी है उतना ही। अगर बस का कैपेसिटी 40 सीट्स है और आप 100 लोग भर के जाओगे तो जमेगा क्या? नहीं। तो जितना कैपेसिटी है उतना ही डेटा जाएगा। इफ इट इज 8 बिट इट कैन ट्रांसमिट 8 बिट ऑफ डेटा। इफ इट इज 16 बिट बस इट कैन ट्रांसमिट 16 बिट्स। इफ इट इज 64 बिट्स बस इट कैन ट्रांसमिट 64 बिट्स। Okay, are you understanding? Yes, ma'am. यस मैम। अभी अगर 64 बिट्स का बस है तो it depends on you whether you transmit 1 bit, 2 bit, 3 bit serially or you transmit all 64 together. That is the choice of you, but you can transmit only 64 bits. Okay, clear? Yes, ma'am. So we have different type of structure. Let us see what is single bus structure. Single bus structure means what? To all these units, input, output, memory और processor. अभी एक सिस्टम को काम करने के लिए क्या क्या लगेगा? वॉन न्यूमैन के हिसाब से इनपुट लगेगा, आउटपुट लगेगा, प्रोसेसर लगेगा और मेमोरी लगेगा। Yes or no? यस मैम। Are you all sleeping? नो मैम। No, ma'am. Then why are you not answering? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के हिसाब से कितने कंपोनेंट्स लगेंगे एक सिस्टम बनाने को? 5. 5. Which are those 5? Input, Output, input, control unit, memory. ALU, control unit and memory. So ALU Memory. or control unit is a part of processor. So we say we have 4 only. IO, that is input, output, memory and processor. बराबर? yes, हाँ। Yes. तो अभी अगर सिंगल बस स्ट्रक्चर है तो वो क्या बोल रहा है? ये चारों कंपोनेंट्स, दैट इज इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड प्रोसेसर, उन सबको एक एक ही बस मिलेगी, एक ही एड्रेस, एक ही डेटा, एक ही कंट्रोल। हर एक इनपुट डिवाइस इसी 3 को कनेक्ट होगी, हर एक आउटपुट इसी को ही, हर एक मेमोरी इसी को ही, हर एक प्रोसेसर इसी को। तो अगर मैंने यहाँ पर 10 इनपुट डिवाइस लगा दिए तो 10 इनपुट के लिए मुझे 10 अलग आईओ बस नहीं मिलेगा या 10 अलग एड्रेस बस नहीं मिलेंगे। मुझे 10 के 10 इनपुट के लिए यही लाइन यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बस है। आप जितना भी डिवाइस लगाओ सबको सिंगल ही, सेम ही चीज शेयर करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? Ma'am, can you please repeat? वी आर स्टडिंग सिंगल बस स्ट्रक्चर। सिंगल बस स्ट्रक्चर मतलब सिंगल बस मीन्स व्हाट? एक ही बस मिलेगा। तो अपने पास कितने यूनिट है? 4 यूनिट है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसर। तो ये चारों डिवाइसेस के बीच में एक ही कंट्रोल बस, एक ही एड्रेस बस और एक ही डेटा बस शेयर होगा। सो नाउ इफ आई हैव 10 इनपुट डिवाइस, all those 10 input device will share same address bus, same data bus and same control bus.
all those 10 input device will not get separate control, separate address and separate data. They have to share this. Why? Because it is a single structure. So what is happening when I do this or when I use this single bus structure, my communication becomes slow. क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास devices ज्यादा है तो हर एक डिवाइस एक ही चीज शेयर कर रही है तो कम्युनिकेशन स्लो हो सकता है. Understanding? Yes, ma'am. Okay, but at the same time, if I use multiple bus structure means what? I have more than one address bus, I have more than one data bus, and I have more than one control bus. So if I use multiple structure, what will happen? What will happen? Multiple buses will be there. I will have multiple buses. I can increase n number of devices and I can transfer the data at a very high speed as compared to that of single bus structure. Yes or no? Yes or no? Yes. This is just like your single bus used for transport and multiple bus used for transport. Now, if you stay at Thane, Godbandha Road, and if you want to go to station and if there is only one bus, what will happen? Can all the passengers who are traveling in the entire day can use that bus? No. नहीं. क्यों? क्योंकि बस एक ही है और उसका टाइम सपोज 12 बजे का है, तो जो वो टाइम पे जाते हैं वही लोग यूज कर पाएंगे ना. यस और नो? Yes. अगर मुझे थाना गोडबंदर रोड से थाना स्टेशन तक 10 बस रहेगी तो मैं कोई भी बजे कितने भी बजे जा सकती हूँ ना, कोई भी बस यूज करके. यस, सो इट इज लाइक दैट. सो इफ आई हैव अ सिंगल बस आई विल हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, but if I have multiple bus structure I can reduce that problem which I am facing in single bus structure. क्या हो सकती है? सिंगल बस रहेगा तो गर्दी ज्यादा रहेगी कि नहीं वो बस में? Yes, हाँ, ma'am. रहेगा. Yes. एट द सेम टाइम अगर सिंगल बस स्ट्रक्चर है, मैंने अगर गर्दी बढ़ा दी यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की, तो इधर भी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम क्रिएट होंगे कि नहीं? Yes. अभी उधर भी एक बस में मैंने 100 लोग भर दिए तो हो सकता है कि बस जाते जाते पंचर हो जाए या उल्टी पुल्टी हो जाए, कुछ भी हो सकता है. यस और नो? Yes. But at the same time, if I use multiple bus structure, I will reduce the traffic. Sorry, not traffic means I will reduce the public. Chances of puncture and those casualty will also be less. So ऐसा ही इधर भी होगा. अगर मैंने multiple bus use किया तो I can divide the traffic of data on multiple components. है ना? दो इनपुट डिवाइस को एक बस दे दो, दूसरे दो इनपुट डिवाइस को दूसरी बस दे दो, दूसरे 3 आउटपुट डिवाइस को दूसरी बस दे दो. So I am distributing my devices and I am distributing the traffic of the data on those different bus lines. Okay, understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which will help me to achieve better result and it will also avoid congestion. Congestion means what? Confusion जो होगा, किसका डेटा कौन सा है, किसका एड्रेस है, किसको किधर भेजना है, ये जो कंफ्यूजन इसमें हो रही है वो मल्टीपल में नहीं होगी. क्यों? क्योंकि मुझे मल्टीपल में पता है कि मेरे पास 2 ही डिवाइस है, तो अगर इसका नहीं तो इसका होगा ही होगा. Yes or no? Yes. Understood the difference in single bus structure and multiple bus structure? Yes, ma'am. Now when I say control bus, ये जो control bus है ना, भले मल्टीपल बस की हो कि सिंगल बस स्ट्रक्चर की हो, ये जो कंट्रोल बस है वो क्या करती है? इट यूजेस सम सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स यूज करती है. व्हाट आर दोस कंट्रोल सिग्नल्स? मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट. नाउ व्हाट डज मेमोरी रीड मींस? Read the data. Read the data, but from where? Memory. Yes, since it is memory read, so it will read the data only from memory and not from IO. But when I say IO read, it will read the data only from IO. IO. When I say memory write, तो वो डेटा किधर जाके लिखेगा? मेमोरी में. But when I say IO write, where it will go and write the data in IO. So that is the difference in all the 4. Understood? Yes, ma'am. So when I say memory read, read from memory, memory write, write to memory, IO read, read from memory, sorry, read from IO, IO write, write to IO. ठीक है? So ये जो कंट्रोल बस है, ऐसे सिग्नल्स क्यों जनरेट किए हमने? ये 5 सिग्नल्स, एनी आइडिया?
what is happening, I am using input, output and memory, है ना. इनपुट से डेटा लो, प्रोसेसर के पास भेजो, मेमोरी में स्टोर करो, आउटपुट में डिस्प्ले करो. तो मेरा रीडिंग राइटिंग जो हो रहा है वो यही 3 यूनिट से हो रहा है ना, आईओ और मेमोरी से. यस और नो? Yes. प्रोसेसर का कुछ काम है क्या? नहीं. तो जो कंट्रोल सिग्नल्स है उसको सिर्फ समझने के लिए कि आईओ से रीड आया है कि आईओ से राइट आया है, मेमोरी से रीड आया है कि मेमोरी से राइट आया है, यही डिफरेंस समझने के लिए ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट है. तो अगर मैंने बोला आईओ रीड एंड आईओ राइट, मतलब वो कहां से आया है? आईओ से. व्हेन आई से मेमोरी रीड मेमोरी राइट, तो वो कहां से आया है? मेमोरी से. तो इनकेस कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड इफ इट इज मेमोरी रीड, विल आई गो एंड चेक आईओ रीड? प्रॉब्लम प्रॉब्लम अगर मेमोरी रीड में है, विल आई गो एंड चेक आईओ? No. No, ma'am. Where will I go and check? Either in memory read or memory write. So to understand the differences, to avoid the problem or to find the solution of the problem, this control bus generates such kind of signals. Understood? Yes, ma'am. Now Yes, what is ma'am. bus request and bus grant? बस रिक्वेस्ट मींस अगर आपको बस यूज करनी है, अब आपको मतलब आईओ को या मेमोरी को, अगर आईओ को या मेमोरी को बस यूज करनी है तो उसको पहले बस की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज मुझे बस दे दो क्योंकि मुझे बस बस यूज करनी है. अगर बस उसको सिस्टम ने दे दी तो हम बोलेंगे उसको बस ग्रांट. Grant. Okay, so if you want to use, you means either memory or IO wants to use the bus, it will first request, and once if the bus is given, we call it as bus grant. ठीक है. तो अगर अभी IO को बस यूज करनी है ये 3, तो वो क्या बोलेगा? पहले बस रिक्वेस्ट डालेगा, फिर उसको बस ग्रांट की जाएगी, उसके बाद वो यूज कर सकता है. मेमोरी को बस यूज करनी है तो फर्स्ट सेंड बस रिक्वेस्ट, once if bus grant is given then only bus can be used. ठीक है. तो आपको ऐसे ही आप जाओगे मेमोरी को बोलोगे बस यूज करनी है, तो ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू रिक्वेस्ट एंड यू कैन यूज ओनली इफ द ग्रांट इज गिवन. ठीक है. Yes or no? Are you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, we have 4 units. 4 units मतलब 4 सिस्टम है. ये 4 सिस्टम आपस में ही बातें करते हैं हमेशा. तो what we have done is we have connected the bus and we have connected the units or the computer with the dedicated lines, and those dedicated lines are called as dedicated bus. मतलब ये हमेशा के लिए फिक्स हो गई क्योंकि ये 4 हमेशा अपने आप में ही बात करते हैं. तो अगर बहुत बातें करते हैं तो हम कैसे we make them as a best friend and we keep on calling. Yes or no? So it is something like that only. If there are 4 computers and if they are always talking to each other and always sharing the data with each other, so we make a bus which is dedicated for those 4 computer itself, and such type of buses are called as dedicated bus. Clear? मतलब ये डेडिकेटेड है यही चारों के लिए और यही 4 यूज कर सकते हैं ये बस. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. नाउ CN कितना स्टार्ट हुआ है पहले तो वो बताओ. First lesson, internet and intranet. ओके. टोपोलॉजी वगैरह आया क्या? स्टार, लीनियर, मैश, ऐसा कुछ? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. चलो ठीक है. अभी हमने कंप्यूटर तो देख लिया, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है. हैव यू हर्ड दैट कंप्यूटर्स कैन आल्सो टॉक? कंप्यूटर्स बातें कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? आउटपुट दे सकते हैं। Yes. Yes, they can talk. If I connect to a network, मैंने इंटरनेट लगा दिया. अभी हम you and me, how are we talking? We are talking because we are connected over a network, no? How can our computers talk? Because they are connected to a network. Okay, so we have different types of networks. So network is what? It is nothing but the internet connectivity which we give so that the computers can share among them data among themselves. They can talk among themselves. Now, if I want you to send an email, how can I send you the email? Only if I have a network. How will you be able to read the mail? Only if you have a network. If I want to chat with you online, how can we both chat? Both of us are connected to a network, therefore we are able to chat. Okay, so what is this network?
to send some data, to receive some data, to talk, we require this network. Yes or no? If अब मैंने बोला कि ये मूवी अच्छी आई है, मुझे मूवी भेजो, तो आप मुझे घर पे देने आओगे क्या मूवी? No. No. You will send me, upload it on your drive, share the link of that drive. Yes or no? Or you will use some another medium over a net, or you will tell me, madam ये link से download करो, इसका print अच्छा है, इसका seed अच्छा है, download हो जाएगी. So this is how we are talking, and when we talk, which means what, our computers are talking and they are sharing a data. Understanding? Everyone of heard might have heard AnyDesk वगैरह सुना है क्या कुछ? Team Viewer, AnyDesk. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any day. Yes, ma'am. वो क्या होता है, आप अगर कुछ कर, मैं अगर मेरे सिस्टम पे कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो आप मुझे बोलोगे मैडम वो AnyDesk का आईडी दे दो, मैं आपके सिस्टम पे बैठ के कर देता हूँ. So what are we doing? We are either you are sending me something or you are taking from my system and we both are talking. So how is that possible? Only when I have a network. अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं और मैं बोलूंगी हाँ मेरे सिस्टम को कनेक्ट हो जाओ और ये फाइल ले लो, आप ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते. So to make the communication happen, we require network. तो अभी कितने टाइप के नेटवर्क है नोटबुक में लिख लो. लीनियर, मैश, रिंग, स्टार एंड कंप्लीट. चलो डायग्राम है. ओके, वेरी गुड. कंप्लीट एंड मैश इज ऑलमोस्ट सेम. लिखे क्या नाम? आर यू ऑल देयर? Yes, ma'am. हाँ. लीनियर, लीनियर मतलब क्या? इन लाइन, एक के बाद एक के बाद एक. दिख रहा है इधर? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. यस और नो? Yes. Yes, ma'am. So now let us assume this is computer 1, computer 2, computer 3, computer 4. अगर 1 को, listen to me carefully, this is linear network, we have 4 computers, 1, 2, 3, 4. पहले 1 है, 1 को 2 कनेक्टेड है, 2 को 3 कनेक्टेड है, 3 को 4 कनेक्टेड है. अगर 1 को 4 के पास डेटा भेजना है, कैसे जाएगा? 2 और 3 के बीच में से. करेक्ट. 1 2 को देगा, 2 3 को देगा, 3 4 को देगा. क्यों? बिकॉज उसका कनेक्शन ही लाइन में किया है. बराबर. सो इफ इट इज अ लीनियर कनेक्शन, आई हैव टू पास द डेटा थ्रू एवरी कंप्यूटर दैट इज देयर इन बिटवीन. आई कैन नॉट सेंड इट डायरेक्टली. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर 1 को 4 को भेजना है, भले मुझे डायरेक्टली जा सकता है, बट लाइन ही नहीं है ऐसा डायरेक्ट, इसलिए मुझे 1 2 3 4 ऐसा टाइम पास करके भेजना पड़ रहा है. बराबर. Yes, भले ma'am. 2 और Yes, ma'am. 2 और 3 को तो डेटा चाहिए भी नहीं, तो भी उनको लेके आगे पास करना पड़ रहा है. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Why this is happening? Because a type of a network is linear, in line. Understood? Yes. Yes, ma'am. अभी दूसरा क्या है? रिंग. Everyone knows what is the shape of a ring. क्या है shape of a ring? Circle. अभी इसमें क्या होता है? Let us number them as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है. अभी अगर 1 को डेटा भेजना है 3 को, सॉरी 4 को भेजना है, ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है. बराबर. तो डेटा यहीं से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है. बराबर. Yes. Yes, ma'am. So what is the advantage? कि instead of following one single path, now I have 2 paths. It may happen that any one of the path will be fastest. ठीक है. अगर ये दोनों स्लो है तो यहां से तो पहले पहुंच ही जाएगा. अगर ये दोनों स्लो है तो यहां से तो पहुंच ही जाएगा. बराबर. Yes, ma'am. सिमिलरली अगर 1 को 5 को भेजना है, तो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है. अभी वो आप डिसाइड करो आपको यहां से भेजना है कि यहां से भेजना है, क्योंकि इधर एक ही नोड आता है बीच में, इधर 1 2 3 नोड आते हैं बीच में. ओके. सो दैट इज व्हाट इज रिंग. अभी वी यूज one more concept over here called as token. अभी ये क्या करेगा? ये सिस्टम को इधर डेटा भेजना है. बराबर. इसके पास 4 के पास, तो ये एक टोकन इशू करेगा और टोकन में लिखा रहेगा डेस्टिनेशन 4. डेस्टिनेशन 4 मतलब क्या? वो 4 के पास ही जाना चाहिए. तो वो भले यहां से भेजे कि यहां से भेजे, ये लोग ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे. वो खोल के देखेंगे नहीं कि अंदर क्या डेटा है कि क्या है कि क्या नहीं. क्यों? क्योंकि टोकन में लिखा है कि वो 4 के पास जाना चाहिए.
तो 2 क्या करेगा, ओपन करेगा डेस्टिनेशन 4 एज इट इज फॉरवर्ड करेगा. 3 क्या देखेगा, डेस्टिनेशन 4 एज इट इज फॉरवर्ड करेगा, बट इट विल नॉट ओपन द डेटा. यहाँ पे क्या हो रहा था, इधर भेजो डेटा, देखो मेरा है कि नहीं, फिर आगे भेजो, फिर आगे भेजो, ऐसा हो रहा था. Here we have a system of token. तो टोकन में ऊपर ही लिखा है कि वो 4 को ही मिलना चाहिए. तो ये जो 2 है और ये जो 2 है वो लेंगे ही नहीं, डायरेक्टली आंख बंद करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Now we have something called a star network. Is it looking like a star? Yes, ma'am. Therefore it is called as star. See, this is what I'm explaining you in very short. ये आपको बहुत ही deep में है CN में, ठीक है? So just understand it in a short. अभी is it looking like a star? Yes. Yes, ma'am. अभी ये जो सेंटर है ना, इसको हम बोलते हैं नोड, सेंट्रल नोड. अभी जैसे थाना से चर्चगेट जाना है, तो डायरेक्ट ट्रेन है क्या थाना से चर्चगेट के लिए? है क्या? नहीं है. आपको दादर उतरना है, दादर से फिर चर्चगेट जाना है. कांदीवली जाना है, डायरेक्ट ट्रेन है क्या थाना से कांदीवली? नहीं है. आपको वहीं दादर उतरना है, दादर से कांदीवली जाना है. तो दादर जो स्टेशन है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल हब. मतलब आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो दादर से ही जाना होगा, सेंट्रल हब से ही जाना होगा. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट. दिस इज द सेंट्रल हब. अगर ये कंप्यूटर के पास डेटा भेजना है तो ऐसा डायरेक्ट नहीं भेज सकता, वो इसी के थ्रू ही जाना चाहिए. If this computer wants to send the data to this computer, it cannot go like this or like this or like this directly. It has to pass to this central node, then this central hub or node will transmit it to the destination. अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है? सब कुछ इधर से ही जाना चाहिए. अगर यही टूट मतलब खराब हो गया, फेलियर हो गया, करप्ट हो गया, तो कोई भी कम्युनिकेट कर पाएगा क्या? नहीं. So that is a disadvantage of the star network. If your central hub fails, all the nodes will stop working. Whereas if this fails, can I transmit the data to this device via this link? Yes, ma'am. Yes. So that is one advantage of a ring over a star. स्टार में सेंट्रल गया तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा. रिंग में भले एक आधा नोड भी चला गया, मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव लाइन है जिसके थ्रू मैं डेटा पहुंचा सकती हूँ, भले फिर वो स्लो क्यों ना हो. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेश नेटवर्क. मेश इज आल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट नेटवर्क. ठीक है, डोंट पे अटेंशन ऑन दिस, पे अटेंशन ऑन दिस. दो इट इज रिटन कंप्लीट, कंप्लीट इज आल्सो कॉल्ड एज मेश. कैन यू टेल मी फ्रॉम द डायग्राम के क्या हो सकता है ये? ध्यान से देखो, हर एक सर्कल एक कंप्यूटर है. ध्यान से देखो. Triangle joined to. Combination of all. इट इज Combination of all. कॉम्बिनेशन नहीं, इट इज कनेक्टेड टू ऑल, है ना. अभी ये कंप्यूटर ले लो, वो इसको भी कनेक्टेड है, इसको भी कनेक्टेड है, इसको भी कनेक्टेड है, इसको भी कनेक्टेड है, इसको भी कनेक्टेड है. ये कंप्यूटर है, इट इज कनेक्टेड टू दिस आल्सो, दिस आल्सो, दिस आल्सो, दिस आल्सो, दिस आल्सो. सबके साथ कनेक्टेड है. हाँ, so a mesh network is a network where every computer is connected to every other computer directly. Can I say that? Directly. Ma'am, but Yes. it is a complete network, no? That is what I told you in the beginning. Do not look at this name. Complete network is equal to mesh network. ये डायग्राम गलत दिया है इधर. आप CN में पढ़ोगे ना तो ऐसा ही दिखेगा आपको mesh network. ठीक है? Mesh network is a network where every computer is connected to every other computer directly. Okay? So अगर मुझे ये कंप्यूटर से ये कंप्यूटर पे डेटा भेजना है, so I can send directly also, I can send like this 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 also, wherever, whatever I want. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So that is the advantage of mesh network. But एक disadvantage क्या है? डायग्राम देख के बताओ ये तीनों. डिसएडवांटेज क्या है?
Am I increasing the hardware cost? Yes. Yes. इधर तो देखो कितनी कम लाइन, कम वायर यूज हो रही है, इधर भी कम वायर यूज हो रही है, इधर मेरे इतनी सारी वायर वेस्ट हो रही है. अगर मुझे ऐसे ही भेजना है तो मैं क्यों ऐसा 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 भी कनेक्ट करूँ ना? So if it is a mesh technology, my number of links, these are called as links. Okay, wire, bus, links, they all mean same. So I am increasing the number of links, because of which the hardware cost of using this network also increases. दूसरा, अगर डेटा नहीं गया प्रॉपरली तो मैं यहाँ पे तो आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि या तो यहाँ से ही गया होगा या तो यहाँ से ही गया होगा, दो ही चीज चेक करनी है, बराबर. अभी अगर यहाँ से यहाँ है तो मुझे कितना चेक करना है? एक तो ये भी चेक करो, ऊपर से ये भी चेक करो, ऐसा भी चेक करो, ऐसा भी चेक करो, ऐसा भी चेक करो, ऐसा 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 भी चेक करो. अंडरस्टैंडिंग? So can I say there is a problem of troubleshooting also? Yes, ma'am. Troubleshooting means what? Finding the error. अगर प्रॉब्लम हो गई, एरर हो गया, तो एरर फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही मुश्किल जाएगा. क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं ना मैंने ये यूज किया है कि ऐसा यूज किया है कि क्या यूज किया है. Whereas here I can find, या फिर ये हो सकता है या ये ही हो सकता है, या ये होगा, या यहाँ से यहाँ ही होगा, ऐसा. Understood? Yes, ma'am. So these are the different networks via which our computers can be connected. Okay? Either may be connected in linear, maybe in ring, maybe in star, maybe as a mesh. Clear? Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. Let us go to the next topic, standard buses. So what is a bus? A medium through which the devices can communicate. Yes or no? Yes, ma'am. What does bus consist of? Wires. Wires are also called as link. And what do they have? They control and they exchange information. एक तो लिंक है उनके पास, वो लिंक पे क्या जाता है? डेटा एक्सचेंज होता है, और उसका वो डेटा एक्सचेंज बराबर हो रहा है कि नहीं, उसका कंट्रोलिंग भी होता है वाया कंट्रोल बस. Yes or no? Yes, ma'am. What transactions does the bus handle? Memory read, memory write, IO read and IO write. ठीक है, इतना ही काम बस करता है. मेमोरी से रीड करो, मेमोरी को राइट करो, आईओ से रीड करो, नहीं तो आईओ से राइट करो. और किधर से भी वो डेटा लेता नहीं है, ना देता है. या फिर वो मेमोरी से ही लेगा, मेमोरी को ही देगा, नहीं तो आईओ से लेके आईओ को ही देगा. डिड वी सी दैट इन द डायग्राम? Yes, ma'am. कोई भी प्रोग्राम हो आपका, कितना भी बड़ा, 10 पेज का, 20 पेज का, इसी में घूमेगा, इसी से आउटपुट लेगा, इसी से इनपुट देगा. बराबर? करेक्ट? Yes, ma'am. So we will be using either memory read, memory write, or we will be using IO read, IO write. तो ये जो बस है वो क्या कर रहा है? IO read, IO write. ये जो बसेस है वो क्या कर रही है? memory read, memory write. समझा? Yes. Yes, ma'am. Okay. So we have two types of buses. ये address bus, ये सब है, जो भी है, those are also types. But we can say that these are two categories. Synchronous bus and asynchronous bus. अभी synchronous मतलब what? It will be waiting for some clock signal. Clock ने बोला है 12 बजे चालू हो, तो जब भी 12 बजेंगे तभी स्टार्ट होगी. That is what is synchronous. So it is waiting for some fixed time. Okay, and that time is based on the clock signal. तो अभी clock signal क्या होती है? High and low. Wait a minute, if I can show you. I have a line like this. I have a line like this. Then again, this is called as clock cycle. Clock is not अपना regular clock. कंप्यूटर में क्लॉक मतलब ऐसा होता है, हाई और लो, दो ही वैल्यू होती है, 0 नहीं तो 1. So this is what is one cycle. Okay. जिसमें this is low, this is high, this is low, अगेन इसका जो नेक्स्ट रहेगा वो हाई, अगेन नीचे लो, ऊपर हाई. क्या? साइन वेव टाइप कुछ ना? साइन वेव नहीं, स्क्वायर. स्क्वायर है ना ये? स्क्वायर वेव, सॉरी. ये स्क्वायर वेव है. ठीक है. सो स्क्वायर वेव के हिसाब से बस काम करेगी.
तो अगर इट मे हैपन कि अगर लो है तभी डेटा भेजना है या फिर हाई है तभी डेटा भेजो, तो जब वो ऐसा चेक कर रहा है, लो एंड हाई साइकिल चेक कर रहा है, such type of bus is called as synchronous bus. तो if I have set that it should set the data only when it is low, तो जब भी लो रहेगा तभी डेटा ट्रांसफर होगा, हाई रहेगा तभी स्टॉप हो जाएगा. वापस लो डेटा ट्रांसफर करो, हाई स्टॉप करो, लो ट्रांसफर करो, हाई स्टॉप करो. ओके, so those buses are called as synchronous bus which goes in sync with the cycle. If it is decided कि हाई है तभी सेंड करो, तो जब भी हाई है तभी डेटा सेंड होगा, लो है तभी ट्रांसफर नहीं होगा. That is what is synchronous. What is asynchronous? It does not look any timing, nothing. लो है तो भी भेजो, हाई है तो भी भेजो. It does not look or it does not follow any clock cycle. Clear? Yes, ma'am. So we have two categories, one which follows the cycle called as synchronous clock cycles or clock pulses, and other is asynchronous bus which does not follow any clock signals. It will send whenever it is low, whenever it is high, it will not follow anything. Okay. Now we have two types of buses. One is called as PCI bus and one is called as SCSI bus. Now you all have heard PCI and SCSI if I am not wrong. पढ़ा है ना CPM में? हाँ या ना, जल्दी बताओ. Are you all there? No. हाँ, thank you. PCI stands for Peripheral Component Interconnect. व्हाइट कलर का स्लॉट्स देखा है मदरबोर्ड पे? हाँ. हाँ, वो क्या है आपके? एक्सपेंशन स्लॉट्स. यस और नो? Yes. उसमें हम क्या डालते हैं? इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट लेक्चर आई हैड टोल्ड यू, लैन कार्ड, मॉडेम कार्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, ये सब डाल सकते हैं, बराबर ना? Yes. तो अगर वो जो एक्सपेंशन स्लॉट व्हाइट कलर का होगा तो हम उसको पीसीआई स्लॉट बोलते हैं. कौन से कलर का होगा तो? White. हाँ, अगर व्हाइट कलर का है तो हम उसको पीसीआई बोलेंगे, और अगर ग्रीन नहीं, ब्राउन कलर का है तो हम उसको एजीपी ग्राफिक्स वाला स्लॉट बोलेंगे. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन कलर. तो आजकल व्हाइट ही रहता है बिकॉज व्हाइट का जो डेटा ट्रांसफर है वो फास्टर है, इसलिए इट इज व्हाइट कलर पीसीआई स्लॉट. तो पीसीआई स्लॉट के लिए जो बस यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज पीसीआई बस, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. अब ये जो बस है दो साइज की होती है. सी, कैन यू सी दिस एक्सपेंशन स्लॉट रिटन ओवर हियर? Yes, ma'am. हाँ, तो ये एक्सपेंशन स्लॉट पे हम क्या लगाते हैं? बहुत सारे कंपोनेंट्स. जो भी मुझे एक्स्ट्रा एक्सपांड करना है मेरे कंप्यूटर में वो सब चीज यहाँ लगती है. लैन कार्ड है तो लैन लगेगा, फिर कुछ मुझे ग्राफिक्स बढ़ाना है तो ग्राफिक्स लगेगा, ऐसा. ओके, वो किसको कनेक्ट रहती है? पीसीआई बस को. ओके, व्हाट इज अ पीसीआई बस? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. अब ये जो बस है उसकी दो साइज है, 32 बिट्स एंड 64 बिट. तो 32 बिट का अगर है तो इट इज कॉल्ड एज पीसीआई, बट अगर 64 बिट का है तो इट इज कॉल्ड एज पीसीआई. ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस. ठीक है, तो अगर एक्सप्रेस है तो 64 बिट्स, पीसीआई खाली पीसीआई है तो कितना बिट्स? 32 बिट्स. 32 बिट्स का बस मतलब कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है एक टाइम पे? 32 bit. 32. या फिर मैं उसको 1 2 3 ऐसा भेजूं कि 5 + 5 + 5 ऐसा भेजूं कि एक ही साथ 32 भेजूं, कैसे भी भेज सकती हूँ. बट कितना जाएगा? ओनली 32, नॉट मोर देन 32. अगर मोर देन 32 भेजना है तो उसको नेक्स्ट साइकिल में भेजो. समझा? यस और नो? Yes, ma'am. इफ अ बस का साइज इज 32, एट अ टाइम आई कैन सेंड ओनली 32 पैसेंजर्स. एक्स्ट्रा भेजने हैं तो वो जब बस वापस आएगी तभी मैं एक्स्ट्रा वालों को भेज सकती हूँ. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट साइकिल. ठीक है, तो ऐसा है. अगर पीसीआई एक्सप्रेस है तो एक टाइम पे मैं कितने स्टूडेंट्स को भेज सकती हूँ? 64. अगर 67 स्टूडेंट्स है तो बाकी के जो 2 या 3 है उसको मैं को नेक्स्ट बस में भेजना पड़ेगा. करेक्ट? Yes. So your PCI is a bus which will be connecting the devices like this: external LAN cards, external modem card, external sound cards, external graphics card. All these can be connected. By what speed it will transfer the data? Either 32 if it is PCI, or it will transfer 64 bits of data if it is PCIe. समझा इतना? Yes, ma'am. Yes.
Now, see, as I said, PCI is of two categories, 32 and 64 bit. 32 bit है तो 32 एक टाइम भेज सकते हो, उससे ज्यादा है तो सेकेंड राउंड में भेजो. 64 बिट की बस है तो एक बार 64 बिट भेज सकते हो, उससे कुछ ज्यादा है तो आप नेक्स्ट राउंड में भेजो. तभी इसमें से 64 बिट्स में से जो 49 लाइंस है, मतलब वो 49 बिट्स है, those 49 lines are for PCI only, मतलब dedicated to PCI transfer, dedicated to device transfer. LAN के लिए, अगर LAN लगाए तो LAN ट्रांसफर के लिए, मॉडेम लगाए तो मॉडेम ट्रांसफर के लिए, साउंड लगाए तो साउंड ट्रांसफर के लिए, ग्राफिक्स लगाए तो ग्राफिक्स ट्रांसफर के लिए. बाकी जो डिवाइस, बाकी जो और पिन्स है उसके अंदर, बस के अंदर बाकी जो पिन्स है, वो पिन्स कौन सी है? एक तो सिस्टम पिन्स, ये 49 में से कुछ पिन्स सिस्टम पिन्स है, विच इज व्हाट क्लॉक एंड रीसेट. ठीक है, क्लॉक मतलब स्टार्टेड, रीसेट मतलब कुछ गड़बड़ हो गई और वापस स्टार्ट करना है तो आई विल यूज रीसेट. जैसा आपका मोबाइल है, बीच में ही हैंग हो गया तो व्हाट डू? यू रीस्टार्ट, और आइदर यू डू इट पावर ऑफ और यू डू पावर ऑन. तो पावर ऑन इज योर क्लॉक, रीस्टार्ट इज योर रीसेट. क्लियर? Yes. Ma'am, please repeat. Your PCI bus is divided into different pins. One category of pin is system pins, जिसके अंदर दो pins है, clock और reset. Clock pin मतलब डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करो, reset pin मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, उधर का उधर स्टॉप करो और डेटा ट्रांसफर रीस्टार्ट करो. Now understood? Yes, ma'am. Okay. Next you have pins related to address and data. बस है तो अभी बस तो क्या है? एड्रेस बस होती है और डेटा बस होती है. yes or no? भले PCI, हाँ भले PCI है, PCI भी कुछ तो डेटा लेगी, तो डेटा कैसे लेगी? एड्रेस और डेटा के हिसाब से लेगी ना. दैट कंसेप्ट विल रिमेन कॉमन, लेट इट बी एनी बस. तो एड्रेस पिन्स विल डू व्हाट? इट विल गिव द एड्रेस, एंड डेटा पिन्स विल गिव व्हाट? इट विल गिव द डेटा. नाउ 32 लाइंस जो है, दोस 32 लाइंस आर रिजर्व फॉर एड्रेस एंड डेटा. मतलब फ्रॉम 64, one line is for clock, one is for reset, remaining 32 are for data and address. They are multiplexed. Multiplexed मतलब क्या? अभी तक हमने क्या पढ़ा? एड्रेस लाइन सिर्फ एड्रेस लेती है, डेटा लाइन सिर्फ डेटा लेती है. करेक्ट? yes or no? Are you all there? Yes, ma'am. कोई हाँ क्यों नहीं बोल रहा है? Are you all, have you सो गए लगता है सब? No, ma'am. नहीं. एड्रेस बस क्या लेती है? सिर्फ एड्रेस. डेटा बस क्या लेगी? सिर्फ डेटा. बट व्हेन आई से दे आर मल्टीप्लेक्स्ड, मतलब क्या? एड्रेस बस डेटा भी ले सकती है, एड्रेस भी ले सकती है, डेटा बस एड्रेस भी ले सकता है, डेटा भी ले सकता है. दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं कभी व्हेन दे आर मल्टीप्लेक्स्ड. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्स्ड. अंडरस्टूड? Yes, Yes. ma'am. तो ये जो 32 पिन्स है, 32 पिन्स एड्रेस और डेटा दोनों काम करेगी. ओके. नेक्स्ट इज इंटरफेस कंट्रोल पिन्स. व्हाट आर दीज पिन्स यूज्ड फॉर? दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द टाइमिंग एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन. कहाँ से डेटा लिया, कितने बजे लिया, कौन से डिवाइस को डेटा दिया, कितने बजे दिया, ये सब कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? इट विल बी डन बाय द इंटरफेस कंट्रोल पिन्स. ओके. And if in case there are any errors while transmitting the data, who will control that errors or who will report those errors? It will be reported by the error reporting pins. Understood? Yes. Yes, ma'am. Yes, How are ma'am. those errors reported? I will tell you in short. Those errors are reported with the help of parity. Now we have two types of parity, even and odd. Even matlab number of ones should be even in that. I will write over here so that you understand. We have two types of parity, even and odd. Even matlab agar number of ones are even, then it is even parity. Sorry. If number of ones are odd, it is odd parity. Now tell me, what is this? Even or odd parity? Even. Yes. Odd parity. Odd. क्यों? क्योंकि कितने नंबर ऑफ वंस है? एक ही है. नंबर ऑफ वन कितना है? ओनली वन. सो वन इज इवन नंबर और ऑड नंबर? Odd. Odd. Correct. Now, if I have a data 1111, is this even parity or odd parity? Even. Even.
Even. Why? Because total number of ones are 4. 4. 4 is what type of number? Even or odd? Even. 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 I have 0, 0, 0, 0. Is it even parity or odd parity? There are Ma'am, no null ones. parity. No null parity. We consider it as even parity only. Okay. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी when I transfer the data, अगर मुझे डेटा देना है मानवी को, तो मैं मानवी को बोलूंगी कि मेरा even parity है. तो what will मानवी do? She will check कि मुझे even parity ही आया है क्या. अगर even के जगह odd हो गया, वायरस अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये मानवी को क्या मिला? odd parity मिला ना, which means what? While sending the data there was the error. So what the pin which generates these errors are called as error reporting pins. Pins. Clear? Yes. तो जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन को डेटा जाता है, पैरिटी भी एक दूसरे को बताई जाती है. तो जब भी मैं पैरिटी भेज रही हूँ उसको, तो मैंने उसको क्या भेजा था? इवन है. तो वो उसके एंड पे जब डेटा मिलेगा तब वो क्या करेगी? कैलकुलेट करेगी. अगर इवन से ऑड में चेंज हो गया, मींस व्हाट के वायरस अटैक हुआ है या कुछ भी, कौन सा तो दूसरा टाइप ऑफ अटैक हुआ है एंड द डेटा इज चेंज्ड. क्लियर? Yes. हाँ बोलो समर्थ. मैम पैरिटी मतलब क्या है? Parity is a way of calculating the error. Term used for calculating the error. ठीक है, बोलो मानवी. Ma'am, these pins are hardware, right? Pins are hardware. हाँ, hardware की pins. Okay. ठीक है. Yes. अभी आपका जो what do we call? I will show you one example. How can I show you those pins? Wait. These are the pins. ऐसे. Okay, ma'am. ठीक है. You insert this pins in the expansion slot. So one of the expansion slot is your PCI bus. ठीक है. तो इसमें से अगर एक हाथ पिन पे क्लॉक जनरेट होगा, दूसरे एक पिन पे रीसेट होगा, बाकी 32 पिन्स एड्रेस और डेटा की होगी, दूसरी एक पिन इंटरफेस पिन होगी, दूसरी एक पिन एरर पिन्स होगी, ऐसे. अंडरस्टूड? Okay, ma'am. Yes, ma'am. So this was all about PCI. Understood? Yes, ma'am. Okay, sorry. We have interrupt pins also and we have cache support pins also. Interrupt मतलब क्या? Which interrupts in between? Which interrupts in between. अभी कुछ तो चल रहा है and I'm taking phone call. What is that? That is interrupt. तो अगर कंप्यूटर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और बीच में से किधर से तो YouTube चालू हो गया, तो वो क्या हो गया? YouTube is nothing but that interrupt has come to the system. तो वैसी एक पिन होगी जो इंटरप्ट्स हैंडल करेगी. ओके. Then you have cache support pins. Pins that are needed to support a memory on PCI that can be cached in processor. That means प्रोसेसर के अंदर ही जैसे रजिस्टर है वैसे एक और मेमोरी होती है, कैश मेमोरी. तो अगर आपका पीसीआई का काम, एग्जीक्यूशन का काम प्रोसेसर के अंदर ही कैश मेमोरी में सेव हो गया, तो वी कॉल दिस पिन्स विल बी एक्टिवेटेड एट दैट टाइम, which will tell the user that data is not in RAM and not in the hard disk, but it is inside the cache itself. Okay? Understanding? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, can we stop for today? We have only 2 slides and then the chapter is done. Okay. Unnecessary Monday तक लेके जाना पड़ेगा मुझे. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. सी जैसे PCI बस था 32 बिट 64 बिट्स का, वैसे ही SCSI बस भी है. SCSI बस का क्या काम है? What is the SCSI standing for? Small Computer System Interface. SCSI. ये बस क्या करेगा? This allows you to connect total 16 peripheral devices. मतलब आपके पास पेन ड्राइव, 5 CD, 5 पेन ड्राइव और 6 हार्ड डिस्क है, तो इतनी सारी डिवाइसेस आप पीसीआई पे नहीं कनेक्ट कर सकते हो ना. आप आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके कंप्यूटर के पास 16 पोर्ट है क्या? नहीं है. तो यू हैव टू इंस्टॉल वन बस. दिस वन बस विल अलाउ यू टू इंस्टॉल 16 मोर डिवाइसेस. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई विल शो यू द डायग्राम. See, this is what is SCSI bus. ये आपका बस है जो आपके मेन कंप्यूटर से अटैच्ड है, बट अभी आपके ये कंप्यूटर को आपको और 16 डिवाइसेस लगानी है.
5 पेन ड्राइव, 6 हार्ड डिस्क, ऐसा, तो आप लगा सकते हो क्या ये कंप्यूटर को इतनी सारी डिवाइसेस? नहीं। तो आपको क्या करना है, आप SCSI बस लगाओ और वो SCSI बस आपको 16 अलग अलग टाइप के डिवाइसेस लगाने को हेल्प करेगा। अंडरस्टैंडिंग? Yes or no? Like USB hub. हाँ, like USB hub, you can say that also. Okay, so if you have more number of devices to be connected and that cannot be connected directly to your system, so you use the interface called as SCSI bus, which allows you to connect these many devices. ठीक है? अब ये बस को कितने सिग्नल्स है? 18 सिग्नल्स। जैसे PCI वैसे को कितने है? 18. It is for transferring data. 1 is for calculating error, that is parity, and remaining 9 are used for controlling the above 2. ठीक है? Understood? Yes or no? यस मैम 18 पिन्स है, 18 पिन में से 8 आप डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हो, एक आप एरर चेकिंग के लिए यूज करोगे और बाकी की 9 ऊपर के 9 को कंट्रोल करेगी। Understood? यस मैम So these are the two different types of buses, that is PCI and SCSI bus. Clear? यस मैम Yes, ma'am. So with this we complete with the first